Hello everyone, welcome to VLearn and welcome to the new course Introduction to the Genetics. I am your host Ashish Kumar for the course Introduction to the Genetics. In last class we studied that in the year 1884, Gregor John Mendel, who is now known as father of genetics, died in the year 1884 without any recognition. So Mendel in the year 1884, without any recognition, died. It took 30 years for the recognition of the Mendel works. It took around 30 years to rediscover the Mendel's work. So in this class, we will basically study the reasons. This class is all about the reasons why the Mendel work was remain undiscovered and why the Mendel work don't get recognized, was undiscovered for so many years. We will also study who rediscovered the Mendel works, that means rediscovery of the Mendel work. So rediscovery of Mendel work, and then we will also study the reasons of success of Mendel's work, why the Mendel work was even successful after 30 years of his death. So in this class we will deep dive into these three reasons. So this is very basic class. Let's move to the reasons why the Mendel work was remain undiscovered for around 30 years. There were many reasons the Mendel work remained undiscovered for 30 years. The first most important reason was that the communication was poor. If we talk about the Mendel's era, it was 1856 to the 1863, and it was 1866 when Mendel work was published in the paper in Natural History Society of Bern. At that time, the communication was very poor. So proceeding in which he got his paper published in the year 1866, that is Natural History Society of Bern. तो इसके अंदर इन्होंने अपना फर्स्ट पेपर पब्लिश किया था. That has limited circulation. This Natural History Society of Bern, in which Mendel paper was published, this has limited circulation. तो इसका बहुत ज़्यादा circulation नहीं था. क्यों नहीं था अभी डिस्कस करेंगे. मेंडल ने अपना काम किसी बड़े पब्लिशर के पास में पब्लिश क्यों नहीं करवाया. द सेकेंड रीजन वाज द मेंडल, जिस टाइम पे मेंडल ने अपने काम की डिस्कवरी की थी, एट द सेम टाइम डार्विन वाज इन दी मेन शो. बिकॉज अभी एट द टाइम जब मेंडल ने अपना काम डिस्कवर किया है, मेंडल ने अपना काम छोटी सी सोसाइटी में पब्लिश करवाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, एवरी बिग साइंटिस्ट वाज looking towards Darwin's work. So actually no one was interested in the Mendel's work because अभी natural theory of selection जो है, selection theory of Darwin क्या हुई है, publish हुई है. That was another main reason why Mendel's work remained undiscovered for so many years. Third reason, Mendel work was extraordinary work. Mendel का वर्क सिंपल वर्क नहीं था. Mendel work was ahead of his time. What do you mean was ahead of his time? Ahead of his time means basically the work Mendel did was he used statistical tools, stats, and basically the pure concept of the mathematics like probability and binomial expression. He used biostatistical tool, he used probability, and he used biostatistical tools, binomial expressions in his work. आप सोचिए, अभी भी जो बायोलॉजी स्टडी करते हैं उनका मैथ के नाम पे हाथ पांव फूल जाते हैं. जिस टाइम मेंडल काम कर रहा था, मेंडल वाज वर्किंग ऑन दिस एंड ही वाज इंक्लूडिंग इन 1866 सॉरी, जब वो काम पब्लिश कर रहा था, ही यूज्ड मैथमेटिकल टूल्स सच एज बायोस्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, binomial expression in his work.
एंड दैट इज द मेन रीजन जो उसके काम को, दैट इज मेंडल के वर्क को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, कोई समझ ही नहीं पाया. तो मेंडल वर्क वाज कंप्लीटली ahead of his time. His work was extraordinary and this was the reason कि कोई उसके काम को 1884 तक तो समझ ही नहीं पाया. इवन आफ्टर डाइंग मेंडल कोई उसके काम को समझ नहीं पाया था. फोर्थ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है जिसका जिक्र नहीं किया जाता है बहुत सी किताबों में, दैट इज मेंडल हिमसेल्फ वाज नॉट confident about his work. He himself was not confident about his work. If you are not confident about your work, how can you get it to be published to the new and large publications which have large publications? तो basically उनका जो काम था वो पब्लिश हो जाता, लेकिन वो उनको खुद को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों था अभी डिस्कस करते हैं भाई. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज बेसिकली क्यों था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था दैट वाज पाइसम सेटाइवम, यू नो दैट. बट मेंडल ने 2 और प्लांट्स के ऊपर ये वर्क किया था. 2 प्लांट कौन कौन से थे. फर्स्ट प्लांट वाज हाइरेशियम. हाइरेशियम इज ऑल्सो नोन एज होकवीड. तो एक प्लांट तो था जी होकवीड एंड द अदर प्लांट वाज बीन्स. ये जो प्लांट था बीन, देन साइंटिफिक नेम इज लेब. इन 2 प्लांट्स पे सेम एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने, बट ही डिडंट गॉट द सेम रिजल्ट. जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था किस पे, पाइसम सेटाइवम पे, सेम एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, हाइरेशियम एंड बीन लैब बीन्स, बट ही डिडंट गॉट द सेम रिजल्ट. तो इन दोनों प्लांट से उनको सेम रिजल्ट नहीं मिला एंड दिस वाज द रीजन व्हाई मेंडल वाज हिमसेल्फ नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ द रिजल्ट. इसकी वजह से, इन 4 मेन रीजंस की वजह से मेंडल वर्क रिमेन अनडिस्कवर्ड फॉर सो मेनी ईयर्स. देन हम आते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क. Rediscovery of Mendel work. If we talk about the rediscovery of the Mendel work, there were 3 scientists, जो 3 मेन साइंटिस्ट थे मेंडल को वापस से नाम दिलवाने में, फादर ऑफ जेनेटिक्स रिकॉग्नाइज करवाने में. These were Hugo de Veris. Hugo de Veris was a Dutch scientist. He was basically from Holland. The other scientist was Carl Correns and the third scientist was एरिक वोन शेमार्क. तो ये तो है अपने मेंडल भाई. दिस इज ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल की डेथ हो गई थी 1884 में एंड मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड. अब यहाँ पे 3 साइंटिस्ट की फोटो आपको दिख रही है. दिस वर द साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क. तो इन तीनों साइंटिस्ट ने फिर से मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया. दिस इज ह्यूगो डी वेरिस. जो सेकंड साइंटिस्ट इज कार्ल कोरेंस एंड थर्ड साइंटिस्ट इज एरिक वोन शेमार्क. इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके ग्रेगर जॉन मेंडल का जो 1884 में डेथ हो गई थी उनके काम को फिर से रीडिस्कवर किया. द ह्यूगो डी वेरिस वाज द मेन साइंटिस्ट. ये जो साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी वेरिस, इन्होंने ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग सिमिलरली. जो एक्सपेरिमेंट ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ही वाज आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. ही रिकॉग्नाइज्ड दैट ये जो काम अभी ये कर रहे हैं ये 1884 में पहले से ही पब्लिश हो चुका है बाय द ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल. तो इन्होंने क्या किया कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो काम था उस ग्रेगर जॉन मेंडल के काम को रीडिस्कवर करवाया. अच्छा, रीडिस्कवर कैसे करवाया? ही रीडिस्कवर्ड ये जो पेपर था ग्रेगर जॉन मेंडल का बनाया हुआ, इस पेपर को एक बड़ी मैगजीन के अंदर पब्लिश करवाया, दैट वाज फ्लोरा.
ये जो फ्लोरा मैगजीन है, इट इज a big magazine and the article was again published in the year 1901. तो ग्रेगर जॉन मेंडल का एक पेपर पब्लिश करवाने का काम किया ह्यूगो डिवेरिस ने। तो ह्यूगो डिवेरिस ने जैसे ही पेपर पब्लिश करवाया इन द जर्नल फ्लोरा in the year 1901, so he got one paper who Hugo de Veris and these other scientists, they published in the फ्लोरा इन द ईयर 1901। तो 1884 में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद में उनका काम फिर से रीडिस्कवर हुआ कब, 1901। एंड देन उसके बाद में मेंडल वर्क वाज लाइक अ ह्यूज सक्सेस एंड मेंडल को उपाधि दी गई एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स की। तो मेंडल वाज फादर ऑफ जेनेटिक्स देन। तो मेंडल का जो वर्क था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मेंडल ने जो काम किया था वो बेसिकली सिंपल था, लेकिन ठीक है। एंड दिस इज द रीजन वाई मेंडल वर्क वाज गोट रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉग्निशन के बाद में उनको सक्सेस भी मिली। एंड ही वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब बेसिकली जो फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, उन्होंने जो काम किया था, ऑल ऑफ यू नो, दैट वाज ऑन पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम की यदि हम बात करें, पी प्लांट की यदि हम बात करें, तो पी प्लांट को सेलेक्ट करना ही एक मेन रीजन था जिसकी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल को ये सक्सेस मिली। तो अब हम बात करते हैं रीजन्स व्हाई मेंडल वर्क वाज सो सक्सेसफुल। तो मेंडल ने जो काम किया था वो किया था पाइसम सेटाइवम पे, एडिबल पी प्लांट पे, जो कि एडिबल पी प्लांट होता है। ही नेवर एक्सपेरिमेंटेड ऑन लेथायरस ओडोरेटस, ही एक्सपेरिमेंटेड ओनली ऑन पाइसम सेटाइवम पी प्लांट। अब रीजन ऑफ सक्सेस क्या था? ये जो पी प्लांट्स होते हैं, दीज पी प्लांट्स आर शॉर्ट साइज प्लांट्स जिनको आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। प्लस इनकी जो लाइफ स्पेन होता है, दैट इज लाइफ स्पेन इज अराउंड 3 to 4 months. Lifespan is around 3 to 4 months. Means the complete life cycle is short. If आप imagine कीजिए, if you are taking a plant that has a life cycle of around years, you have to wait for many years to basically observe the characters and experiment. तो बेसिकली उन्होंने जो प्लांट यूज किया वो बिल्कुल शॉर्ट लाइफ साइकिल का यूज किया एंड 3 to 4 वीक्स के अंदर, 3 to 4 मंथ्स के अंदर उनकी लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इन्होंने जो करेक्टर्स चूज किए, लाइक प्लांट हाइट, प्लांट फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, सीड फॉर्म, ये सारे के सारे करेक्टर जो है वो वेल ऑब्जर्व्ड करेक्टर है। आप इनको आंखों से देख के बता सकते हो कि कौन सा प्लांट टॉल है, कौन सा प्लांट ड्वार्फ है, ठीक है। तो दीज आर वेल करेक्टर्स, वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स। सो दीज ऑल करेक्टर्स वर वेल डिफाइंड एंड ऑब्जर्वेबल करेक्टर। So these are well defined and observable characters. Plus ये जो फ्लावर्स इन्होंने लिए थे, the flowers on Pythum sativum plant is bisexual flower. Bisexual flower. If you are taking bisexual flower, तो आपके लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो bisexual flower है उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना इज नॉट ए प्रॉब्लम। आप किसी भी फ्लावर को आराम से सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा सकते हो। एंड पाइसम सेटाइवम प्लांट की एक स्पेशल फीचर ये है कि प्रीडोमिनेंटली देयर इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, प्रीडोमिनेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो ये जो प्लांट्स थे दे वर ऑलरेडी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते थे ये। नेक्स्ट इज इजी टू कल्टीवेट। यू कैन इजिली कल्टीवेट पाइसम सेटाइवम पी प्लांट। आफ्टर यू कल्टीवेट, the life cycle is almost completed, तो number of seeds जो basically produce होती है, the number of seeds produced are very high, number of seeds जो produce होती है that is very high। अब ये कैसे important है? Let us consider आपके पास में कुछ ही seeds हैं। On